آپ کو لے چلیں گے صدر ٹرمپ گفتگو کر رہے ہیں. Doug Burgum is going to be signing, and Chris Wright, who's phenomenal, Energy, Department of Energy. We're going to be taking we're going to make a lot of money from energy. We have more than anybody else. We're going to make a lot of money from energy. We're going to make a lot of money from tariffs. European Union charges us, they have a VAT tax of 20%, but it's really much higher than that. And that's almost the equivalent of a tariff. And they're tough. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے صدر سے عہدے کا حلف لیا. واشنگٹن ڈی سی میں -3 درجہ حرارت کے سبب انڈور تقریب کا اہتمام کیا گیا. کیپٹل ہل میں تقریب کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی حلف اٹھایا. تقریب میں صدر ٹرمپ کے اہل خانہ سابق صدر بل کلنٹن، جارج بش اور براک اوباما بھی شریک ہوئے. ٹیسلا کے سربراہ ایلن مسک، گوگل کے سی ای او، میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ، ٹک ٹاک کے سی ای او اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. حلف کی تقریب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن اور ایلیس ایچائے پر ملاقات کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ واشنگٹن کے چرچ میں دعائیہ سروس میں بھی شرکت کی. امریکہ کا سنہرا دور شروع ہو گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں اہم اعلانات کیے. میکسیکو سرحد پر قومی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا. کہا میکسیکو سرحد پر فوج تعینات ہوگی. غیر قانونی تارکین وطن کو فوری واپس بھیجا جائے گا. میکسیکو میں رہنے کی گزشتہ پالیسی بحال کی جائے گی. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تارکین وطن اور پناہ کے متلاشی امیگریشن کے لیے انتظار کریں. منشیات کے مافیاز کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا. امریکہ میں تمام غیر ملکی گروہوں اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا جائے گا. امریکی صدر نے اپنی کابینہ کے تمام اراکین کو ریکارڈ مہنگائی فوری کم کرنے کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی. صدر ٹرمپ نے قومی توانائی ایمرجنسی کا بھی اعلان کیا. Declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places. And I will send troops to the southern border. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat record inflation and rapidly bring down costs and prices. We'll also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. We will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry. We are establishing the External Revenue Service. My administration will establish the brand new Department of Government Efficiency. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. As of today, the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. From now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں جو بائیڈن حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کہا سابق حکومتیں داخلی مسائل حل نہیں کر سکیں اور بیرون ملک مہنگی مہم جاری رکھی. پچھلی حکومت امریکی اور امریکی مفادات کا دفاع کرنے میں ناکام رہی. Every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. America will soon be greater, stronger than ever before. But first, we must be honest about the challenges we face. Our government confronts a crisis of trust. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home.
while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown. People of North Carolina and other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago, or more recently Los Angeles, where we are watching fires still tragically burn. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it. All of this will change starting today. From this moment on, America's decline is over. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अपने इंतखाबी वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर ने पिछली हुकूमतों के 80 तबाहकुन अहकामात मंसूख किए। सदर ट्रंप ने सबसे पहले कैपिटल हिल हमला केस में सजा पाने वालों के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिकी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अज़ीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के लिए हमेशा मिलकर काम किया। क़याम अमन के हसूल के लिए इश्तराक का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं, ट्रंप और बानी पीटीआई की पॉलिसियां एक जैसी हैं। ट्रंप स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं, पाकिस्तान के नाम पर बानी पीटीआई को देखेंगे। तारीखी दिन है, अमेरिकी तारीख में भी और आलमी तारीख में भी असरात हर मुल्क देखेंगे आप। मैं वाहिद बंदा था पब्लिकली जिसने कहा था 6 महीने साल पहले ट्रंप इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने दोस्त अपने बड़ी को लिए रिहाई की बात भी करेगा। इमरान खान की लॉबी ट्रंप के सिस्टम में हमारे सरकारी सिस्टम से ज्यादा बेहतर है। ट्रंप रवायती सियासतदान नहीं है। ये नहीं सोचेगा कि मुझे स्टेट डिपार्टमेंट ने ये फाइल में लिख के दिया पाकिस्तान के बारे में। वो उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स, जब वो पाकिस्तान को देखता है तो उसको इमरान खान याद आता है। अभी हम बाइडन की खुशामद करते थे, बाइडन ने तो शहबाज शरीफ के खत का जवाब ही नहीं दिया। जिस खित्ते में पाकिस्तान लोकेटेड है वो सबसे अहम खिता है अमेरिकन खारजा पॉलिसी के लिए। ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, काउंटर टेररिज्म, 25 करोड़ का मुल्क। और अब बात करेंगे पीटीआई मुतालबात का हक़ाइक़ से ताल्लुक नहीं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन ना बनाने का फैसला, हुकूमत का पीटीआई मुतालबात का जवाब तैयार। ज़राए ने दावा किया है कि कानूनी टीम ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को राय दे दी। कानूनी टीम का कहना है 9 मई को GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, शहीदों की यादगारों और मुजस्मों की बेहुरमती की गई। मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमों पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई मुकदमों के अदालतों में चलान पेश हो चुके। 9 मई का कोई मुलजिम सियासी कैदी नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी इस खबर की तरदीद की। इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया, मुतालबात पर हुकूमती कमेटी के मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ खबर दुरुस्त नहीं। मीडिया में आने वाली तफसील बेबुनियाद है। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें मुशावरत कर रही हैं। अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल करने के अमल में हतमी जवाब तैयार करने में मज़ीद 1 हफ़्ता लग सकता है। बानी की हिदायत हैं, कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत की तरफ से कमीशन ना बनाने की खबर की तरदीद आ गई है। इसकी अभी तरदीद आई है और वो कह रहे हैं कि ये वैसे अफवाही है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला बनेगा। खान साहब की हिदायत यही है कि आगे हमारी फिर मुज़ाकरात मजीद नहीं होंगे। एक मीटिंग को इतने दिल पे नहीं लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर्स पे एक मीटिंग को मुज़ाकरात आप नहीं कह सकते। उस दिन आप कह रहे थे कि सियासी नहीं, मैंने आज भी मैंने वही कहा है जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, मुलाकातें होती रहती है। इस तरह अगर किसी की मुलाकात होती है तो इससे एक कैची में गोइयां नहीं होने चाहिए। नॉर्थ कराची में 7 साल के सालिम को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश घर के करीब टैंक में अगवा के 5 रोज़ बाद फेंकी गई। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती और कत्ल की तस्दीक हो गई। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी रिश्तेदार असर को हिरासत में ले लिया। मुलज़िम का DNA टेस्ट कराया जा रहा है। सालिम की लाश गुमशुदगी के 11 रोज़ बाद घर के करीब पानी के टैंक से मिली थी। टैंक का ढक्कन गायब था, उसकी जगह गत्ता रखा हुआ था। SSP AVC अनिल हैदर का कहना है, सालिम की गर्दन टूटी हुई थी, उसे गला दबाकर कत्ल किया गया। सालिम को 5 रोज़ पहले कत्ल किया गया था और फिर लाश फेंकी गई। 7 साला सालिम को ज़्यादती का निशाना बनाया गया, फिर गला घोट कर कत्ल किया गया। जिस्म पर जख्मों के 13 निशानात पाए गए। नन्हे बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया, बच्चे की लाश फिर कमरे से नीचे जख्म के निशानात हैं। दोनों नथने पिचके हुए हैं, होंठ सूजे हुए पाए गए। सालिम की पेशानी
कान के नीचे और गर्दन के पीछे चोट के निशानात पाए गए। दाईं कोहनी के नीचे पसलियों के ऊपर हड्डी तक चोट लगी है। दाएं हाथ और बाएं बाजू, हथेली और मुट्ठी पर भी चोट का निशान पाया गया। पेशानी के अलावा तमाम चोटें मरने से पहले की हैं। सारिम के फेफड़े सिकुड़ गए थे। लाश के अज़ा लेबोरेटरी भिजवा दी गए। कराची के गार्डन वेस्ट से लापता 2 बच्चों को 7 रोज बाद भी तलाश नहीं किया जा सका। बच्चों के वालिद कहते हैं किसी से दुश्मनी नहीं, आला हुकाम से अपील है बच्चे जल्द तलाश किए जाएं। कराची के रहायशी 3 नौजवानों के हनी ट्रैप के मामले में पेशरफ्त ना हो सकी। एसएसपी एंटी वायलेंट क्राइम सेल अनिल हैदर मिन्हास का कहना है तीनों मगवियों की आखिरी लोकेशन उबाड़ो की आई। घोट की पुलिस ने बाजियाबी के लिए कोशिशें की। अफजल खान की रिपोर्ट। क्लीनिंग का ठेका दरअसल हनी ट्रैप निकला। 2 जनवरी को कराची के इलाके गुलबहार से घोटकी रवाना होने वाले तीनों नौजवान आखिरी मालूमात आने तक कच्चे के डाकुओं के चुंगल में थे। घोटकी की टीम के साथ भी राब्ते में है और उनकी जो रैंसम कॉल है वो 60 लाख उनसे वो डिमांड की है 3 उन लड़कों का उनका। अब उस हनी ट्रैप के केस को हम उसी तरीके से हल करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें मैं वही बता रहा हूँ कि उसके ऊपर काम जारी है। कच्चे के डाकुओं ने मगवियों की वीडियो भी जारी की थी। हमें मार देंगे, ये जंजीर वगैरह बंदी हुई है, वो लोग खुदा की नियत में छुड़वा लो वरना ये मार देंगे आज। 13 जनवरी को तीनों नौजवानों के अगवा का मुकदमा रिजविया सोसाइटी थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने भी इस मामले का नोटिस लिया था। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमास ने दुनिया पर साबित कर दिया इसराइल और अमेरिका की सारी जासूसी और टेक्नोलॉजी फेल हो गई। कराची में यौमी अज़्म तशक्कुर की तकरीब से हेल्प में बोले अमेरिका की जमहूरियत इंसानी दुश्मन पर मबनी है। रिपोर्ट कर रहे हैं चांद नवाब। जंग बंदी माहदे पर जमात इस्लामी की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल की मईशत तबाह और इनके वज़रा आंसू बहा रहे हैं। अमेरिका के कहने पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो इबरत का निशान बन जाएगा। अमेरिका के कहने पर तुम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकोगे, इसलिए इसकी तरफ देखो भी मत, सोचो भी मत। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी और मस्जिद अक्सा को आजाद कराते हुए अमेरिका के गुलाम हुक्मरानों से भी आजादी हासिल करना होगी। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। फलस्तीन में जंग बंदी पर जमात इस्लामी ने कराची में यौम तशक्कुर मनाया। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे मज़ार कायद जाने वाली अहम सड़क फिर गंदे पानी में डूब गई। बार बार सीवरेज के पानी से मुतासर होकर MA जना रोड उखड़ कर रह गई है। अफजल परवेज की रिपोर्ट। शहर कायद की अहम शाहराह MA जना रोड सी ब्रिज का मुकाम, जहां गटर उबलने के बाइस ट्रैफिक निजाम बुरी तरह मुतासिर और सड़क अबूर करना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। बहुत मजा आ रहा है, गटर के पानी की बदबू सूंघते हुए जा रहे हैं। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से अस्पताल आने वाले मरीजों और करीब में कायम स्कूल के तालिबे इल्मों को शदीद दुश्वारी का सामना है। सीवरेज का मसला है जो अभी तक हल नहीं हो रहा है। अभी रोड बनाया था, सीवरेज की वजह से टूट गया। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से कई माह से खराब सीवरेज लाइन तब्दील न होने से शहरी परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। सीवरेज के तबाहशुदा निजाम के बाइस शहर की मसरूफ तरीन MA जना सड़क इस वक्त दरिया के मनाजिर पेश कर रही है। कैमरामैन अम्माद रियाज के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खानेबाल जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेनतीजा रहा। जिला इंतजामिया तजावुजात का जिन काबू करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से नोटिस लेने की अपील की है। रिपोर्ट करें साजिद खान। की हिदायत पर जिला इंतजामिया की जानिब से हर दूसरे दिन बाजारों को तजावजात से पाक करने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। इंतजामिया के अफसरान आते हैं, दुकानदारों की जानिब से आर्जी तौर पर बढ़ाए तजावजात, बेंच, फट्टे वगैरह ट्रालियों में डालकर ले जाते हैं, जिन्हें कुछ ही देर बाद मुबैना तौर पर बल्दिया मुलाजमीन रिश्वत लेकर दुकानदारों को वापस कर देते हैं और तजावजात जूं के तू रहते हैं। शहर के तमाम बाजारों में दुकानदारों और रेडी वालों की जानिब से कायम तजावजात जहाँ शहर की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं, वहीं बाजारों में खरीदारी के लिए आई खवातीन के लिए भी किसी अजाब से कम नहीं। ये जो नाजायज तजावजात हटाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, इसका कोई फायदा नहीं है।
یہ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں, سب کچھ ہٹ جاتا ہے, 6 دن وہی حال ہوتا ہے. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزارش ہے اس کا سٹرکٹ آپریشن کیا جائے, یا تو یہ سب ختم کیا جائے یا پھر یہ ہفتے میں ایک دن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انتظامیہ جو آپریشن کے لیے بازار میں آتی ہے, فیلڈ میں اترتی ہے, تو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن جیسے ہی یہ واپس اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں, وہی ریڑیاں, وہی جو معاملات ہیں, سب اپنی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں. یہ بلدے والے صفائی کے لیے جب آتے ہیں نا جی, اس ٹائم یہ سارے چلے جاتے ہیں ریڑی والے, ہر جگہ کی صفائی ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ جاتے ہیں فوری فرائے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ٹیوں پہ. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ تجاوزات کا مکمل خاتمہ کیا جائے تاکہ خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو آسانی ہو. کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانیبار. بڑھتی ہوئی منشیات کی روک تھام کے لیے ضلعی پولیس سرگرم عمل. سال کے پہلے 20 دنوں میں پولیس نے بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری منشیات برآمد کر لی. امیر عمر چمن کی رپورٹ. کا استعمال ایک ایسی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے. چنیوٹ پولیس نے رواں سال کے دوران منشیات کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے بڑی کامیابیاں حاصل کی. پولیس نے رواں سال 7 کلو سے زائد چرس, 3.5 کلو ہیروئن اور 549 لیٹر شراب برآمد کی. اس کارروائی کے دوران 40 منشیات فروشوں کو بھی گرفتار کیا گیا. جب نیا سال شروع ہوا اس پہ بھی ہم نے شروع کی ہوئی ہیں کارروائیاں, اور یہ چل رہی ہیں. ہم لوگ بہت افیکٹولی اب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہیں. اس بارے میں جو ہمیں ادارے مختلف رپورٹس مہیا کرتے ہیں, اس کے اوپر اپنے اسپیشل ٹیمیں اپنی تشکیل دے دی ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ڈی پی او عبداللہ احمد کہتے ہیں کہ ہم چنیوٹ میں منشیات کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر چکے ہیں. ہمارا مقصد نہ صرف منشیات کی ترسیل کو روکنا ہے بلکہ ان عناصر کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا ہے جو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں. پولیس کی ان کامیاب کارروائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ قانون کی گرفت اب منشیات کے خلاف مزید سخت ہو گئی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن, ARY نیوز, چنیوٹ. پاک پتن میں عوام کو فوری انصاف کے فراہمی کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد جاری ہے. پولیس کے افسران آنے والے سائلین کی شکایات سن کر ان کی فوری دادرسی کر رہے ہیں. امداد حسین کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن انصاف آپ کی دہلیز پر کے تحت تھانوں کی سطح پر کھلی کچہریاں لگا کر سائلین کی شکایات کا ازالہ کیا جا رہا ہے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن جوید اقبال چدڑ کہتے ہیں کہ تھانے کی سطح پر کچہریاں لگانے کا مقصد عوام اور پولیس میں فاصلے کم کرنا ہے. CM صاحب کی ڈائریکشن اور وین کے مطابق کیا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیادوں پہ کھلی کچہری ہوتی ہے. ان کھلی کچہریوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ اور فوراً ملے. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ جہاں پہ بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے, اس کو فوراً رسپانس کیا جائے, فوراً اس پہ FIR درج کی جائے اور لوگوں کو گرفتار کیا جائے. کھلی کچہری میں پولیس ملازمین اور اعلی افسران نے ایک ہی مقام پر اکٹھے ہو کر آنے والے شہریوں کی شکایات سن کر ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین, ARY نیوز, پاک پتن. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہنجرا کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ عرفان ہنجرا کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. آپریشن کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ کا کہنا تھا, اس سلسلے میں پہلے مظفر گڑھ سٹی کو فوکس کیا گیا تھا, اس کے تمام چوک جو مین بازار ہیں ان کو کلیئر کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج ہم جو ہے ہمارا ایک اربن سینٹر تھا رنگپور, اس پہ جو ہے ہم نے اپنی تمام ٹیم کے ساتھ, ضلع کونسل کی ٹیم میرے ساتھ ہے اور لوکل گورنمنٹ کا سٹاف ساتھ ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہے پولیس کی نگرانی میں, اور یہاں پہ میں خود موجود ہوں, ہم نے یہ گرینڈ آپریشن کیا ہے. جو جتنی بھی ہماری ٹیمپرری انکروچمنٹ تھی چوکس کو کلیئر کروا دیا گیا ہے, اور یہ انشاءاللہ مرلہ وار جو جتنے بھی یہ جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ جاری رہیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم بصیرہ کریں گے, روہیلا والی کریں گے, خان گڑھ میں بھی آپریشن کیا جا رہا ہے. ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے مکمل خاتمے تک وقفے سے آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر, ARY نیوز. کراچی سمیت سندھ بھر کے شہریوں کے لیے خوشخبری, اب قطار نہ انتظار گھر بیٹھے شناختی کارڈ بنوائیں. نادرا کی جانب سے بائکر سروس کا آغاز کر دیا گیا. DG نادرا احتشام شاہد نے سروس کا افتتاح کیا. انجم وہاب کی رپورٹ.
कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के शहरियों के लिए नादरा बाइकर सर्विस का आगाज कर दिया गया। शहरी घर पर ही शनाख्ती कार्ड समेत दीगर दस्तावेजात बनवा सकेंगे। ये बाइकर सर्विस का इफ्तिताह किए यहाँ पे हम कराची में, हैदराबाद में और मीरपुर खास में ये सर्विसेज दे रहे हैं। ये बाइकर्स आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी जो हेल्प लाइन है डीजी नादरा एहतशाम शाहिद ने कहा कि शहरी नादरा की हेल्प लाइन पर बुकिंग कराकर बाइकर को घर बुलवा कर शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बेफाम और दीगर नादरा की सहूलियात हासिल कर सकेंगे। बाइकर सर्विस के थ्रू आप हमारी सारी सर्विसेज ले सकते हैं सिवाय न्यू कार्ड के। जो फ्रेश कार्ड होता है उसके लिए आपको हमारे सेंटर पे तशरीफ लाना पड़ेगा। नादरा बाइकर सर्विस मैन का कहना था कि बायोमेट्रिक की मशीन समेत दीगर तमाम आलात हमारी किट में मौजूद हैं। हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, हमारे पास प्रिंटर है, स्कैनर है, हमारा जो सेंटर्स का इक्विपमेंट होता है तो हमारे पास पूरा प्रॉपर इक्विपमेंट है इसमें दिया गया है। एहतशाम शाहिद का कहना था कि नादरा बाइकर सर्विस पीर से जुम्मा सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। बाइकर सर्विस की एक बुकिंग से सिर्फ एक ही सर्विस फराहम की जाएगी। दीगर सर्विस हासिल करने की फीस अलहदा से 1000 रुपये वसूल की जाएगी। कैमरामैन काशिम निजामी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। ARY न्यूज बुलेटिन फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।